بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بھٹی صاحب, ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم گمبٹ آتے ہیں اور اس انسٹیٹیوٹ کا دورہ کرتے ہیں. آئی تھنک 2019 میں ہم پچھلے بار ادھر آئے تھے اور آپ کے فیسلٹیز کا دورہ کیا. اس وقت آپ کا کینسر, یہ لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج چل رہا تھا, کڈنی کا علاج چل رہا تھا, آپ کا کارڈیاک فیسلٹیز تھی. اور آج ہم جب کچھ سال بعد واپس آئے ہیں تو آپ نے اضافہ کیا ہے آپ کی فیسلٹیز میں. آج ہم نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ادارہ کا افتتاح کیا ہے, جو 100% مفت علاج کرواتا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ کتنا مشکل اور کتنا مسئلہ ہے ہمارے یہاں تھیلیسیمیا کا اور بہت سے مختلف ان بیماریوں کا. تو یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا جو سینٹر اب یہاں کھل رہا ہے, کام کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی, اس کا بہت ہی اچھا امپیکٹ ہوگا. پھر آپ نے اپنا کینسر ٹریٹمنٹ, وہ بھی 100% مفت علاج ہر کسی کینسر کا, جو انشاءاللہ تعالی یہاں اب شروع ہوا ہے اور آگے بڑھتا رہے گا. وہ بھی فیسلٹیز میں نے دیکھے ہیں, وہ بھی شاندار تھے, ورلڈ کلاس تھے. اور آپ کا جو ریپڈ رسپانس سینٹر, جو ایک ٹراما سینٹر ہوتا ہے, جہاں ہمارے ہاں بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہم نے روڈ انفراسٹرکچر میں الحمدللہ اتنا انویسٹ کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اور ساتھ ساتھ سی پیک کے بھی منصوبے ہیں جس کا انفراسٹرکچر میں بھی انویسٹمنٹ ہوا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں اضافہ ہوا ہے گاڑیوں کا. لوگ جو سفر کرتے ہیں سڑکوں پہ, تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہمارا بھی جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتے ہیں تو کبھی کبھار افسوس کے ساتھ واپسی پہ رات دیر پہ ٹریول کرتے ہوئے یہ ٹریفک کا جو نقصان ہوتا ہے, ایکسیڈنٹس کا نقصان ہوتا ہے. اور جو میں نے آج یہاں ریپڈ رسپانس کا ایمرجنسی سینٹر کا فرسٹ کلاس فیسلٹی دیکھا ہے, جس کا ہم چاہتے ہیں کہ NICVD کی طرز پہ ہم اس کا ماڈل بنا کے سیٹلائٹ سینٹرز بنائیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا لانگ ٹرم میں وہ پلان ہوگا کہ ہم اس ریپڈ رسپانس کا پورا سرجریز کے, اور جو ایکسیڈنٹ میں آپ کو مختلف قسم کے تکلیف پہنچ سکتے ہیں, جو آپ کا زندگی کو خطرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور ان کا علاج بھی بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ اگر ہم نہ صرف گمبٹ میں مگر آگے جا کے مختلف شہروں میں یہ کھولیں گے, تو اس کا بہت ہی بہتر امپیکٹ ہوگا. یہاں سے ایک ریکویسٹ آیا کہ ہم گمبٹ کو میڈیکل سٹی ڈکلیئر کیا جائے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ CM صاحب بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ گمبٹ آج سے پاکستان کا میڈیکل کیپٹل ہے. آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی کوششوں کی وجہ سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو جو پرائیورٹی دیا گیا ہے علاج کا اور مفت علاج کا, اس کی وجہ سے آج سے ہی گمبٹ تو میڈیکل کیپٹل ہے. میں پورا پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں, میں پنجاب کو چیلنج کرتا ہوں, پنجاب حکومت کو, میں پختونخوا حکومت کو چیلنج کرتا ہوں. ایک میرا گمبٹ کا تحصیل ہے خیرپور کا, آپ اپنا ایک تحصیل اٹھا کے دکھا دیں, لاہور کا دکھا دے, پشاور کا دکھا دے, جہاں مفت اسی تحصیل میں, اسی حکومت کا ہاسپٹل میں مفت کینسر کا علاج ہو حکومت کی طرف سے, مفت لیور کا علاج ہو حکومت کی طرف سے, مفت کڈنی کا علاج ہو اسی تحصیل میں حکومت کی طرف سے. آپ ایسے ہاسپٹلز کسی اور صوبہ میں نہیں دیکھیں گے. کسی اور صوبہ میں اتنا آپ کا
परफॉर्मेंस आप नहीं देखेंगे। मैं अभी आप इनका जो लिवर फैसिलिटी है, भट्टी साहब ने मुझसे केक कटवाया था वहाँ, बिकॉज उन्होंने एक अपना रिकॉर्ड तुड़वा दिया था। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, अपना फ़ोन पे नज़र नहीं आ रहा। कितने थे भट्टी साहब? 550 लिवर ट्रांसप्लांट का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने तोड़ा था। मगर साथ साथ जो एक बहुत एस्टोनिशिंग फैक्ट था, वो पूरा एक ग्राफ बनाया गया कि गंबट में जो शहरी आते हैं और अपने इलाज करवाते हैं वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो ब्रेक डाउन दिया गया कि 52% जो ये ट्रांसप्लांट्स के लिए ही थे ना, या सो 52% इन्हीं 500 का जो ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड आपने तुड़वाया है, तो इनमें से 52% सिंध के हैं। 287 पीपल सिंध से आके अपना ट्रांसप्लांट गंबद से मुफ्त करवा के चले गए हैं। पंजाब का 29%, जो 161 पेशेंट्स पंजाब से आके गंबद खैरपुर सिंध आके अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो बलोचिस्तान से 15%, पख्तूनख्वा से 3%, तो 14 पेशेंट्स पख्तूनख्वा से भी आए हैं, और इस्लामाबाद से 7 पेशेंट्स, कश्मीर से 2 पेशेंट्स, जो सिर्फ आपका इन जो ट्रांसप्लांट्स हैं इनके लिए आए हैं। मगर मुझे बताया जा रहा था कि पंजाब में भी एक लिवर और किडनी इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी ट्रांसप्लांट्स करवाए गए हैं। मगर गंबट ने सिर्फ जो पंजाब के पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट्स करवाए हैं वो पूरा पंजाब के लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट से ज़्यादा है, सिर्फ अब पंजाब के शहरियों का। और हमारा जो बीबी शहीद का और कायदे अवाम का नज़रिया है वो ये है कि हमने सेहत इलाज अवाम को पहुंचाना है, मुफ्त पहुंचाना है, और किसी शहरी के लिए अपना इलाज करवाने के लिए, अपने बड़ों का ज़िंदगी बचाने के लिए पैसा कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सियासत है, ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा विजन है पूरे पाकिस्तान के लिए, कि पूरा पाकिस्तान में प्राइवेट तो अपने इदारे बनते रहेंगे, मगर हुकूमत की तरफ से ऐसे इदारे बने जो अवाम का इलाज मुफ्त करवाए, ताकि कोई पाकिस्तानी को ये रुकावट का सामना ना करना पड़े कि पैसा नहीं है तो वो अपना इलाज नहीं करवा सके। और उसका इस विजन को मुकम्मल करने के लिए हमने बहुत इन्वेस्ट किया अपना हॉस्पिटल्स में, ख़ास तौर पे जो टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं। जब हम वफाकी हुकूमत में थे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा वसीला सेहत का था, और उस वसीला सेहत के थ्रू हमने इंश्योरेंस दिलवाना था जो गरीब तरीन और पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों को जिनके पास कोई वसाइल नहीं था। तो इनके लिए ये वसीले सेहत के नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा का एक कार्ड था। मियाँ साहब का हुकूमत आया, उस कार्ड का नाम तब्दील किया गया PM हेल्थ कार्ड, और अब खान साहब का हुकूमत आया गया और वही वसीला सेहत का कार्ड का नाम तब्दील किया गया और सेहत का इंसाफ का नाम दिया गया है। और वो हमें बता रहे हैं कि आप इस सेहत का इंसाफ कार्ड को अपना लें, मगर हमारा जो मौक़िफ़ है कि जिस तरीके से, इसलिए वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल का ज़रूरत होता है, तो जिस तरीके से ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वसीला सेहत का कार्ड चला रहे हैं, ये गलत चला रहे हैं। इसलिए हम तो ये कार्ड दे रहे थे तो गरीब तरीन लोगों के लिए दे रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि उनके जो सेहत कार्ड है वो अगर आप लेते हो तो आपको एक सब्सिडी मिलता है। भट्टी साहब कह रहा था तकरीबन कितना था उनका कार्ड के, 5-6 लाख का आपको सब्सिडी मिलता है, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं।
मगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलेगा, वो प्राइवेट इंश्योरेंस को मिलेगा, और मुझे उतना ही सब्सिडी मिलेगा। मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर वो सेहत का इंसाफ कार्ड में ले लूं तो मुझे उतना ही सब्सिडी मिलेगा जितना गरीब तरीन आदमी को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ सिंध के 3 जो हमारा मेडिकल प्रोजेक्ट्स है, गंबट, SIUT को जो सिंध हुकूमत पैसा देता है, और हमारा NICVD का जो स्ट्रक्चर है, ये 3 इदारों के जो सिंध हुकूमत का बजट है वो पूरा पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड का बजट का बराबर है। आप इस तरीके से सेहत का निज़ाम नहीं चला सकते हो। खान साहब की जो सेहत कार्ड है वो पब्लिक गवर्नमेंट इदारे पे, हुकूमत के हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ बजट पे डाका मार के उसी पैसा को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट इंश्योरेंस को दिलवा रही है। हम समझते हैं कि अगर उसी कार्ड को आप तब्दील करते, वो पैसा आप गरीब लोगों को देते जो अफोर्ड ही नहीं करता, और बाकी आप अपना बजट अपना ही हुकूमत के हॉस्पिटल्स में खर्च करते हैं, तो भट्टी साहब की तरह यहाँ गंबट में आपका इतना अच्छा इदारा बन सकता है। तो कोई वजह नहीं है कि हम मुल्क भर में ऐसे इदारे नहीं बना सकते हैं। सिर्फ आपको प्रायोरिटी देना पड़ता है सेहत के सेक्टर को। ये तय करना है कि अगर आप गरीब हो, आपका इलाज मुफ्त होगा और पैसा इलाज से कोई रुकावट नहीं बनेगा। आप अपना वसाइल सही खर्च करें, सही इस्तेमाल करें, तो फिर जैसे गब्बर का हॉस्पिटल वर्ल्ड लीडिंग हॉस्पिटल बन चुका है, कोई वजह नहीं है कि लाहौर का भी हॉस्पिटल्स हमारा बराबर बने, पेशावर का हॉस्पिटल्स भी हमारा बराबर बने। सिर्फ इस किस्म की मेहनत की ज़रूरत है। और मैं सलाम पेश करता हूँ जो यहाँ गंबट के हमारे डॉक्टर्स है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, आपने से और ख़ास तौर पे ऑब्वियसली हमारा जो भट्टी साहब है, आपने गंबट का नाम रोशन किया है, आपने खैरपुर का नाम रोशन किया है, आपने सिंध का नाम रोशन किया है, आपने पाकिस्तान का नाम को रोशन किया है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नज़रिया है, हम मुफ्त इलाज अवाम के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम गंबट के खैरपुर की तहसील गंबट में मुफ्त कैंसर की इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के इलाज करवा सकते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अब इस किस्म की फैसिलिटीज़ को मुल्क के चार कोने जो है वहां तक पहुंचा सकते हैं। और मैं जानता हूं कि CM सिंध ने माजी में भी आपको कभी मायूस नहीं किया है, और बहुत ही नाइंसाफ़ी होता है जहाँ तक CM साहब का भी बजट है, मगर वो ज़रूर खैरपुर को हमेशा प्रायोरिटी दिया जाता है, और आपका जो गंबट का जो हॉस्पिटल है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो हम सब इस प्रोजेक्ट पे फ़ख्र करते हैं, और हमारा पूरा कोशिश होगा कि जो भी आपको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगा वो हम पूरा करें। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू।